Okay, students, today our lecture is the properties of the logarithm. Properties of logarithm आपके पास क्या है? Before that we solve that how to find the logarithm, mean and anti-log. But now how to combine and expand the logarithm. यानी अगर logarithm आपके पास एक नंबर लिखा होगा तो उसको हम किस तरह से expand करेंगे? Now we are going to the solve to the rule of logarithm. There are the four basic properties. How many? Four basic properties of logarithm that we will be working with. For every case, the base of the logarithm cannot be equal to 1. It's never possible to equal to 1 because the common log, the base minimum is equal to, that is 10. Okay? And the values must all the positive. Okay? No negative in the logs. There is no log in the negative. Is it clear? So there is a simple form of that one, f of x, like in the form of log of x, she write that f of x and f inverse x is equal to log x base a. So at this time you don't remember about this one because that's the form of log of x, but in your class we will use that the form of log is this one. Like here you can see that 2 log base 2 equal to 5. So this log 2 and base 2 will be cancelled. Same can cancel, and what is the answer to that one? 5. And the same like, so 3 and 3 will also be, so what is the answer? 7. So 7 is the answer. Mean if the value of log and also the base is same, so answer is the exponent or the power, right? So now how to solve this one? Like you can see that m and n, what is the relation between m and n? Multiply. So multiply change, you can see that multiply change into plus. Multiply change into plus. Means that when we have to separate, so first we will write log m base b. Base b is any base. Right, 5, 10 or like that one or 20, any base. So, and the plus log n base b. Mean base will be remain same, but the multiplication change into plus and the both term have with the log sign. दोनों के साथ क्या आ जाएगा? लॉग आ जाएगा और आपके पास प्लस की साइन आ जाएगी. सेम लाइक यू कैन सी दैट हियर एक्स एंड वाई, विच इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? मल्टीप्लाई चेंज किस में हो गया? प्लस. और आप देखिए दोनों के साथ लॉग लग गया. अब दोनों के साथ जी पावर चेंज होगी तो एक और लॉ लगेगा. ठीक है, वो आपके पास बताऊंगा अभी. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ दैट लॉगरिथम. अब लॉग 6 है. लॉग 6 को अगर देखिए किस तरह से लिख सकते हैं? नूर ये की क्लिक बंद कर दें. 6 को किस तरह से लिख सकते हैं? 6 के फैक्टर बनाओ. 2 3 आर. तो अगर आपके पास log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं. क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल x और y मल्टीप्लाई हो रहे हो तो log की फॉर्म में क्या करते हैं हम उसे? प्लस. सो 6 जो था 6 था, 3 2s are 6 या 2 3s are 6, तो log 2 प्लस log 3. इसका एक और भी बन सकता है. अच्छा, इसका मुझे आप बताएं क्या बनेगा? नहीं, अगर इसको log को अगर प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9b. नहीं, log 9 बेस 3 प्लस log b बेस 3. बेस चेंज नहीं होती, बेस आपके पास वही सेम रहेगी. 3 है या 3 है. यहां क्या हो रहा है? 9 और b में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस और एडिशन. ओके, वन मोर एग्जांपल. अच्छा, अब दूसरा आपके पास आ गया. दैट इज सेकंड रूल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रूल? क्वोशिएंट रूल. व्हाट इज दैट? क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल मीन व्हेन डिवाइड. सो डिवाइड चेंज इनटू माइनस. इससे पहले वाले रूल में क्या था? मल्टीप्लाई चेंज इनटू ऐड और प्लस एंड डिवीजन चेंज इनटू. बस सिर्फ सेम ये डिफरेंस है. डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस. एंड दोनों के साथ क्या लग जाएगा? लॉग लग जाएगा. एग्जांपल जैसे आपके पास दी गई log x over y, base will remain same. Here base 5 and here also base 5. So log x minus log y. क्यों? क्योंकि यहां डिवीजन साइन की जगह आपने क्या लगा दिया? माइनस. दैट्स गुड. इसका आंसर क्या बनेगा?
ऐसे नहीं पढ़ते, रीड लाइक दैट, log a base 2 एंड माइनस log 5 base 2, यानी पहले log की वैल्यू पढ़ते हैं देन बेस पढ़ते हैं. हाउ टू रीड? log a base एंड log 5 base 2. इसके बारे में क्या बताएंगे? log mn base 2 minus log हाँ. p base 2. Is it correct? She said log mn base 2 minus log p base 2. थोड़ा सी मिस्टेक है. m प्लस n, प्रोडक्ट किस में चेंज होना है? प्लस के अंदर. तो आपके पास क्या बनेगा? log m base 2, क्योंकि ऊपर क्या है? प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट चेंज इनटू प्लस एंड डिवीजन चेंज इनटू minus. Do you understand? Then now the next law is the power. That is the power rule. अब अगर आप देखें the power आपके पास है x, तो x कहां आ गया? It will become a coefficient. देखो x यहां m की पावर क्या था? x. अब इक्वल के बाद x कहां आ गया? स्टार्ट में, मीन कोफिशिएंट बन गया. तो इसकी पावर खत्म होगी, log m बेस b और लेकिन x आ गया. इसी तरह से 2 यहां पे क्या है? पावर. तो 2 पीछे आ जाएगा, 2 log b बेस 5. बेस नहीं भी रीड करेंगे नो इशू, क्योंकि बेस विल नॉट चेंज. बेस ना लेफ्ट में चेंज होती है ना राइट साइड में चेंज, बेस विल बी रिमेन सेम. सिर्फ फोर्थ लॉ में बेस चेंज होगी तो आपको बताऊंगा. बाकी 3 लॉज के अंदर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसमें बेस चेंज नहीं होगी. सो अब आपके पास एक एग्जांपल देते हैं सॉल्व करने के लिए. तो आपके पास 5 की पावर x क्या हो गया? तो बेस 2. अब नेक्स्ट मुझे मेरे ख्याल में आप बताने के काबिल हैं. लिख ले पहले, फिर उसके बाद मुझे जवाब दें. Here 2 rules are applied. Keep in your mind, not only one rule. कौन कौन से 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं? Multiply. Good. Multiply and power. Okay, do it. Hurry up. Then tell me the answer. Because I am giving you time. So, रूल नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं इस वक्त? अब हम पावर रूल नंबर कौन सा है? 3. गुड. What is the answer? 3 plus 4 log 3 plus 4. log 7 8. Okay, next option. Anusha. 3 log 8 ठीक. 7 Okay. plus log plus 4 log b base 7. Good. Safa. Agree? It means that you want to say like this. Yes. No. See here, आपके पास इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस में चेंज होगा? प्लस में. प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो गया, राइट? उसके बाद जो उसकी पावर है, अकॉर्डिंग टू रूल पावर कहां जानी है? लॉग से पहले कोफिशिएंट बनना है. सब क्लियर हुआ? ये दोबारा मजीद एक्सप्लेन कर दूं? क्लियर? अब आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, कंबाइन और एक्सपेंड कैसे होता है? पहला रूल, अगर मल्टीप्लाई है तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस. सेकेंड रूल क्या था? लाइक दैट. थर्ड, पावर किसमें चेंज होगी? कोफिशिएंट बन जाएगा. इज इट राइट? 3 रूल हमने पढ़ लिए, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल एंड पावर रूल. पावर रूल. प्रोडक्ट रूल नंबर कौन सा है? प्रोडक्ट रूल कहां है? नंबर बताओ. 1. एंड पावर रूल 3. एंड कोशेंट रूल. ओके, दैट्स गुड.
अब these are the properties based on the rules exponents since logs exponents, यहाँ पे आपके पास बेस हर जगह सेम रही। अगर आपने चेक किया हो तो देखिए, मैंने आपको कहा था बेस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखती, बेस विल बी रिमेन सेम, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो या थर्ड हो। बट द फोर्थ रूल के अंदर हमारे पास चेंज होते हैं, लेकिन फोर्थ रूल अभी दिया नहीं है। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इसका जवाब कौन बताएगा? पहले क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? अब एक बात बताइए, दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस की साइन किस में चेंज होती है? डिवीजन। यानी अगर मैं देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए करूं तो एक सेकेंड, नहीं मुझे अब यहां पे आप लोगों से मैं थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प लूंगा और आप लोगों से करवाऊं। क्या ख्याल है, करेंगे? क्या आएगा आंसर? अगर मैं इसको यूं लिख दूं, लॉग आपने कहा कि बेस 4 हो गया, देन 4 6 16, so what will become? 1/4 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये 1/4 आ गया है, देन लॉग आपके पास 4 और ये 1/4 है, राइट? अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बनेगा? नहीं, 4 की पावर -1 नहीं बन जाएगा? नहीं, 4 की पावर की साइन चेंज होगी। और आपको एक बात बताई थी, अगर दोनों सेम सेम हो तो क्या हो जाता है ये? तो व्हाट इज द आंसर? -1 आया। ओके, यहां आ जाए, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस वन? इसको सेपरेट सेपरेट करके लिखते हैं ना। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस वन? जी सफा, हेल्प मी बेटा। लॉग के साथ नहीं आती, लेकिन उसकी पावर आ सकती है। पावर आपके पास नेगेटिव है, जो भी है, क्योंकि हमने कहा था कि बेस और वो सेम सेम होना, तब आपके पास, अगर यहां -4 होता तो फिर ना आता। यानी इस 4 की जगह आपके पास क्या होता? -4, क्योंकि ये नेगेटिव 1/4 है। इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? तो नंबर तो पॉजिटिव है ना। अगर 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? अगर 1 डिवाइडेड बाई 4 करें, दैट इज 0.25, यानी एक दरहम के 4 टुकड़े किए जाएं और 25 इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फिर यहां बताएं। लॉग आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? नो नीड, पावर लाजमी नहीं है। बेस आपके पास यहां पे बेस नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी? बेस जो भी हो, आंसर तब भी हो रहेगा। यानी बेस फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इसकी बेस में 10 कर देता हूं, तो यहां 10 आ जाएगा, यहां 10 आ जाएगा। यानी हम इस वक्त रूल्स पे डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रूल्स। अच्छा, अब आपके पास एक ग्रुप और बैठा हुआ है, मुझे उसकी अटेंशन चाहिए। जो ग्रुप बी बैठा हुआ है, जिसमें 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, अब मुझे बताएं ये कैसे करेंगे। अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दे तो पहले मुझे इस पार्ट का जवाब बताएं, क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे? ये शम्मा, जवेरिया और आलिया, हु इज गिविंग आंसर? पहले बताओ रूल कौन सा यूज हो रहा है? कैंसिल होगा, क्वोशंट रूल हो रहा है। क्वोशंट का मतलब क्या होता है? आलिया आप क्या कहती हैं? Which rule applying here? जी अनुषा जी, पावर रूल एंड क्वोशंट रूल। यानी अगर मैं इसका इस 2 को खत्म करना है, सो व्हाट शुड राइट हियर? log m पावर 2 और बेस 2 आ जाएगा। फर्स्ट आई विल फिनिश इट्स पावर, so same like if I want to finish the power of this number, so what should write? Wait, Shama. मैंने कितनी दफा कहा है, लॉग के साथ पहले उसका नंबर बताते हैं, बेस 2 पे बाद में बोलते हैं। चलो ओके, बेस 2 आगे
n exponent 4. n exponent 4. जवेरिया, what is the next step? पहला स्टेप तो ये हो गया, द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू टू पे कैंसिल कैसे? ये तो पावर है, वो जो मैंने कैंसिल किया था मैंने बताया था ये सेम सेम हो, log 4 और बेस 4 वो सेम था, देन आई कैंसल, पावर -1 बचा था। यहां क्या सेम है? जी सफा, log m स्क्वायर डिवाइड बाय n exponent 4, that is the answer. Understand? I need your attention. Write this one, then go on the next. First write कर लेंगे. Now after that, the next. Here, how to solve this one? Condition the logs. आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर मैं सोल्व करने के लिए कहूं तो आपके पास हाउ टू सोल्व दिस, log 5 प्लस log x माइनस log 3 प्लस 4 log 5। अगर हम इसको सोल्व करेंगे देन वी विल मेक इट्स पीस। हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। जब टुकड़े करेंगे तो इस चीज का ख्याल करेंगे कि प्लस कहां कहां है। क्यों? प्लस को हमने चेंज कर देना किसके अंदर? मल्टीप्लाई। लेकिन उसके साथ हम एक स्टेप और भी करेंगे, पावर को भी खत्म करना है। अगर इसको मैं यूं लिखूं, ये प्लस की साइन खत्म करना हो तो व्हाट शुड आई राइट हियर? और 5x, इज इट फाइन? यानी अगर मैं ये कहूं यहां तक सॉल्व हो गया, ओके, माइनस log 3, हाउ टू, प्लस की साइन में भी रहने देता हूं, हाउ टू सॉल्व दिस 4 log 5? गुड, log 5 एंड इट्स एक्सपोनेंट विल बी 4। ये 4 भी खत्म हो गया। बेटा थर्ड लॉ आपके पास पावर रूल क्या था? अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने अभी आपको पढ़ा के गया हूं, log m की पावर n किसके इक्वल होता है? जी बताएं। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम था पावर रूल। पावर रूल में क्या था? n log m। तो हम इस n को यहां शिफ्ट नहीं कर देते? ऐसे किया था या नहीं किया? जी, तो सेम अब क्या रिवर्स चला है, यानी पहले यूं था तो इस तरह से लिखा था, सो आई गो ऑन रिवर्स। अगर वापस जाना है तो ये यहां पे जाके इसकी पावर बन जाएगी। सो सेम वे, ये 4 उसके पीछे कोफिशिएंट है तो यहां पे आके क्या बन जाएगा इसकी? पावर। नाउ यू कैन फिनिश प्लस एंड माइनस एट द सेम टाइम। इफ आई वांट टू फिनिश एट द सेम टाइम, सो व्हाट शुड राइट हियर? Log 5x 5x divide by, good, divide by 3, multiply, प्लस चेंज होगा किसमें? मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4। अगर मैं इसको यूं कहूं कि एक लाइन के अंदर से कंबाइन कंप्लीट करें तो एक लाइन में इसका ये बनेगा, ठीक है। अगर मजीद सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो फिर 5 की पावर 4 है और इसको मल्टीप्लाई करें या 5 की पावर 5x हो जाएगा। कैसे? तो ये 5 की पावर क्या है? 4 और साथ में 5 और मिलाएंगे तो 5 की पावर 5x, यानी इसे आप मजीद भी सिंपलीफाई करना चाहें तो आप यूं लिख सकते हैं log 5 की पावर 5x over 3। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, यहां पे आ जाएं। सबसे पहले क्या करेंगे? सर पहले लॉग लिखेंगे। लॉग में क्या लिखूंगा? जी चले मुझे आप बताते जाएं। log 5 बेस 4। देखिए डिवाइड से पहले भी एक काम किया करो, उसकी पावर यानी कोएफिशिएंट को खत्म किया करो। चेक करो किसी के पीछे अगर ये कोएफिशिएंट है तो उसको खत्म किया करो।
इसके पीछे नहीं है, मुझे यहाँ कुछ नजर आ रहा है, नेक्स्ट के पीछे है ना? तो मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वो बताया। उसने डिवाइड कहा इसलिए मैं रोका। चले माइनस लॉग पावर 2 बेस 4 हो गए। यहां तक बात आगे समझ। इज इट क्लियर? ये 5 अगर गौर से देखा जाए तो ये 5 दोनों का कोफिशिएंट है, तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा इस फॉर्म में लेके जाएं। ये एक स्टेप कर लेते हैं। ओके, अगर मैं लिख देता हूं 5 log 3x पावर 4 एंड माइनस 5 log 5x एंड पावर बेस 4। इज इट करेक्ट? अब फिर दोबारा मुझे पावर में जाना है, तो क्या बनेगा बेटा? अगर मैं इसको फिलहाल आपके पास वैसे लिखता हूं log 5 बेस 4, ये भी वैसे आ जाएगा log आपके पास x स्क्वायर बेस 4 प्लस यहां क्या आ जाएगा log 3x हाँ। 5 पावर 5 बेस 4 गुड माइनस log 5x पावर 5 बेस 4 गुड। यहां तक तो बात होगी आपके पास क्लियर। मैं यहां पे थोड़ी सी जगह को यूज करूंगा और इस जगह को यूज करते हुए हम फाइनल आंसर लिखेंगे एंड हु विल हेल्प मी। अब ढूंढो मल्टी प्लस एंड डिवाइड, सुनो ढूंढो जो प्लस है उसे मल्टीप्लाई करके या ब्रैकेट डाल के क्या कर दो, कंबाइन, और जो माइनस है उसे कहां लेके जाओ, फ्रैक्शन के नीचे। यानी आपने यहां पे लिख दिया लॉग, तो ये चीज लिख दी, बेस हमारे पास 4, बेस तो हमारे पास सेम चल रही है। अब जहां पे माइनस है वो कहां आएगा, फ्रैक्शन का लोअर पार्ट डिनोमिनेटर में, और जहां पे आपके पास क्या है प्लस, वो फ्रैक्शन का अपर पार्ट या न्यूमिनेटर आएगा। सो न्यूमिनेटर में क्या क्या आएगा, 5, पहला 5 आ गया, फिर उसके बाद नहीं माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव किस में चेंज होता है, डिवीजन। यानी जो नेगेटिव है उसको आप नीचे लेके जाएं मेरा बेटा, यहां लेके आए। नेगेटिव वाला पार्ट कहां जाएगा, बिलो द फ्रैक्शन, और प्लस वाला पार्ट विल बिकम न्यूमिनेटर। सो नेक्स्ट न्यूमिनेटर क्या बनेगा, 3x पावर 5, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं 3x इट्स पावर 5। फिर गुड, यानी आप यहां ब्रैकेट डालें, एक ब्रैकेट और डालें और इसकी पावर 5 बना दें। सो व्हाट इज द डिफिकल्ट, बात समझ आई कि नहीं आई? मैं दोबारा बताता हूं जवेरिया आपके लिए, कहां कंफ्यूज है, यहां कहां पे कंफ्यूज है बताएं। देखिए पहले सबसे पहले पावर को खत्म करना है। पावर खत्म कब होती है, जब उसके जो पीछे जो कोफिशिएंट है इसको हमने खत्म करना है। यहां कोफिशिएंट आपके पास 5 है जिसको हमने ब्रैकेट खोल के दोनों का कोफिशिएंट बना दिया। यहां ऑलरेडी कोफिशिएंट बना हुआ था, सो वी विल मेक इट पावर फर्स्ट, वी विल मेक इट पावर फर्स्ट। इधर हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया तो फिर हमने इसको पावर बना दिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ प्लस और माइनस है। क्या है, प्लस और माइनस। प्लस किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, गुड। और माइनस किस में चेंज होता है, तो पहले तो मैंने एक लॉग लिख दिया बेस 4, और मैंने यहां फ्रैक्शन बता दी कि प्लस वाले पोर्शन के नंबर कब आएंगे, न्यूमिनेटर में, और माइनस वाले नंबर कहां पे आएंगे, क्या इसके साथ प्लस है कि माइनस है, 5 के साथ प्लस, जिसके पीछे कुछ नहीं है उसके पीछे पॉजिटिव साइन है, सो आई राइट 5 इज द न्यूमिनेटर। फिर अगले नंबर से पहले क्या है, माइनस के प्लस, सो वी विल राइट इन द डिनोमिनेटर। फिर उससे अगले नंबर में क्या है, सो इट विल बी राइट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, सो आई राइट इन न्यूमिनेटर। उससे अगले नंबर के साथ फिर क्या है, सो शुड राइट ऑन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, फिनिश। हाँ जी, इज इट क्लियर? अच्छा, अब आपके पास फिर और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद आपके पास क्लियर हो जाए, लेकिन उससे पहले बेल बज गई।